رہے ہم یا رب ہو کرم، کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام نیکی کا سفر میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو درود شریف کی ایک فضیلت سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 ٹائمز درود پاک پڑھے، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور ہم کریں گے ملاقات کچھ بچوں اور بڑوں کے ساتھ، اور کریں گے ان سے کچھ معلوماتی سوالات۔ تو چلے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں بچوں سے سوالات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی۔ اچھا جی، میں جو ہے وہ کڈس مدنی چینل کی ٹیم کی طرف سے آیا ہوں، اور مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے، تو آپ ان کے کچھ جوابات دیں گے؟ جی ضرور۔ اچھا جی، تو بتائیے کہ خانہ کعبہ کس کنٹری میں ہے؟ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے۔ خانہ کعبہ مکہ کے شہر میں ہے۔ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں۔ مکہ مکرمہ میں۔ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف پکا؟ پکا مکہ شریف میں۔ جی آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا حسن بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ پر جو کور ہے، اس کور کا کون سا کلر ہے؟ اس کور کا بلیک کلر ہے۔ خانہ کعبہ پر جو کور ہے اس کا کلر بلیک ہے۔ بلیک ہی کلر ہے؟ جی پکا؟ جی کنفرم ہے نا؟ جی بلیک۔ بتائیے کہ خانہ کعبہ پر جو کور ہے اس کا کیا کلر ہے؟ بلیک کلر۔ بلیک کلر پکا؟ وائٹ کلر تو نہیں ہے؟ کنفرم ہے آپ؟ اس کا کلر بلیک ہے۔ خانہ کعبہ پہ جو کور ہے اس کا بلیک کلر ہے۔ بلیک۔ اس کا کلر بلیک ہے۔ اس کا کلر پکا بلیک ہے؟ جی۔ بلیک۔ بلیک پکا؟ یلو تو نہیں ہے؟ جی جی۔ خانہ کعبہ پہ جو کور ہے اس کا رنگ بلیک ہے۔ پکا؟ وائٹ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ جی تو آپ نے جواب دیا، خانہ کعبہ پر جو کور ہے اس کا کلر بلیک ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ جی۔ کون سے پارے میں آپ؟ میرا قرآن ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، اب آپ حفظ کر رہے ہیں؟ جی۔ کون سا پارا آپ نے حفظ ابھی میں نے شروع کیا ہے۔ حفظ کرنا؟ تو ابھی آپ پہلے پارے میں یا 30ویں پارے ابھی میں؟ 30ویں پارے میں ہوں۔ اچھا جی، تو آپ بتائیں کہ قرآن پاک کس لینگویج میں ہے؟ قرآن پاک عربی لینگویج میں ہے۔ لینگویج قرآن پاک کی عربی ہے۔ کنفرم؟ جی۔ عربی زبان میں۔ اچھا، آپ کنفرم ہے کہ عربی زبان میں؟ اردو زبان میں تو نہیں ہے؟ نہیں پکا؟ پتہ۔ قرآن پاک عربی لینگویج میں ہے۔ قرآن پاک عربی میں۔ آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ عربی لینگویج میں ہے؟ جی۔ اردو لینگویج میں تو نہیں ہے؟ انگلش لینگویج بھی نہیں ہے؟ بتائیے قرآن پاک کس لینگویج میں ہے؟ عربی۔ قرآن پاک عربی زبان میں۔ قرآن پاک عربی زبان میں پکا؟ جی۔ اردو زبان میں تو نہیں ہے؟ نہیں۔ انگلش زبان میں بھی نہیں ہے؟ پکا؟ قرآن پاک عربی لینگویج میں۔ قرآن پاک عربی میں ہے۔ عربی میں۔ عربی میں؟ جی۔ انگلش میں تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا جی، اب آپ وہ جانور بتائیں جس کا پہلا حرف میم ہو۔ مور۔ مور۔ مردہ۔ مرغا بھی ہے، اور بھی بتائیں بہت سارے۔ مگرمچھ۔ مگرمچھ اور مرغا۔ مرغا اور مور۔ مور، اور بھی ہوں گے، اور بتائیں۔ مچھلی۔ مور۔ مور اور بھی آتے ہوں گے، بتائیں۔ مرغا۔ مرغا اور مگرمچھ۔ مگرمچھ اور مرغی۔ مرغی۔ مگرمچھ۔ مور۔ مرغا۔ مور۔ مور اور مرغا۔ مرغا اور مگرمچھ۔ مور۔ مور، اور بتائیں۔ مگرمچھ۔ مگرمچھ، اور مچھلی، مچھلی۔ مرغی۔ مرغی۔ اچھا، کسی ایسے جانور کا نام بتائیں جس کا پہلا حرف میم ہو۔ مور مور اور مرغا۔ مارکور۔ مور۔ مور، مرغا۔ مگرمچھ۔ جی تو آپ نے جواب دیے مگرمچھ،
मोर, मुर्गा और मछली, ये सारे जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, आप बताएं कि कौन सी नमाज में 14 रकातें होती हैं? चलते चलते नेकी की बात। जुम्मे की नमाज, जुमाअतुल मुबारक। थोड़ी इनकी जानिब आता हूँ, वो नमाज जो है जुम्मे के दिन पढ़ी जाती है। जुम्मे की, जुम्मा, 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 पक्का जुम्मा है? जुम्मा की नमाज है, ज़ोहर की नमाज तो नहीं है, फजर की नमाज भी नहीं है। ताई वो कौन सी नमाज है जिसमें 14 रकातें होती हैं? जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक, पक्का? जी, इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमने पूछे कुछ बच्चों से सवालात और हमें मिले भी उनके जवाबात। तो बढ़ते हम लोग बड़ों की तरफ और हम लोग जाने अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बड़ों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अपना तारुफ करवाइएगा। मैं अब्दुल कयूम हूँ, यहाँ कराची में रहता हूँ। अच्छा जी, ये- हम लोग जो है कृष्ण मदनी चैनल की तरफ से आए हैं और आपसे करने कुछ सवालात, तो आपकी इजाज़त है? जी बोलें। अच्छा जी, तो बताइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ार पर जो गुंबद है उसे क्या कहा जाता है? गुम्बद खिज़रा। उसे गुम्बद खिज़रा कहते हैं। उसे गुम्बद खज़रा कहा जाता है। कंफर्म है आप? जी। गुम्बद खिज़रा कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पर जो गुंबद है उसे क्या कहा जाता है? गुम्बद खज़रा। गुम्बद खिज़रा। गुम्बद खिज़रा। गुम्बद खिज़रा बोला जाता है जनाब। कंफर्म है आप? जी जी। गुम्बद खिज़रा। गुम्बद खिज़रा। और आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब आप बताएं कि किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जन्नत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में के लोग जाएंगे। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। बताइए, शब महराज कौन से महीने में आती है? रजब शरीफ में। रजब शरीफ में। कंफर्म है आप? जी। रमजान शरीफ में तो नहीं आती? नहीं। शब महराज रजब शरीफ के इस्लामी महीने में आती है। रजब में। पक्का शाबान में तो नहीं आती? नहीं। रजब। रजब में। रजब। रजब, पक्का रजब है? जी। रमजान का नहीं है? नहीं। रजब के महीने में। बताइए, हफ्ते में वो कौन सा दिन है जिसे ईद का दिन कहा जाता है? जुम्मा। जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक। हफ्ते का वह जुम्मा मुबारक दिन है जिसको ईद का दिन कहा जाता है। जुम्मे का दिन। जुम्मतुल मुबारक। जुम्मतुल मुबारक। जुम्मे का दिन जनाब। जी, तो कृष्ण मदनी चैनल के नाजरीन, इन्होंने जवाब दिया जुम्मतुल मुबारक, और जुम्मतुल मुबारक ईद का दिन है, इसलिए इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, अब आप बताएं कि अब्बुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम का टाइटल है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। 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 ये आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, अब आप बताएं कि अब्बुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम का टाइटल है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अब्बुल बशर का टाइटल दिया गया है। हमने पूछे बड़ों से मालूमाती सवालात और हमें मिले उनके जवाबात। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफाई को बहुत पसंद फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफाई हाफ ईमान है। हम मुसलमान को चाहिए कि अपनी बॉडी और कपड़ों को मेल कुचेल से भी साफ रखना चाहिए और अपने सर के बालों को भी दुरुस्त रखें। नेल भी ज्यादा ना बढ़ने दें कि उनमें मेल कुचेल भी भर जाते हैं। आज मैं आपको नेल काटने के बारे में कुछ सुन्नतें और मैनर्स बताऊंगा। जुम्मे के दिन नाखून काट लेने चाहिए, क्योंकि जुम्मे के दिन नाखून काटने वाला 10 दिन तक बरकतें हासिल करता रहता है। हाँ,
अगर नाखून ज्यादा बढ़ गए हो तो जुम्मे का इंतजार ना करे, फौरन नाखून काट लें। बाज बच्चे दांतों से नाखून काट रहे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं, इससे बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इसी तरह अगर नेल काट लें तो उंगलियां धो लेनी चाहिए। चले आए अब मैं आपको हाथों के नेल काटने का सुन्नत तरीका बताता हूँ। सबसे पहले राइट हैंड के नाखून काटने हैं और इसकी सीक्वेंस कुछ यूं है। सबसे पहले शहादत वाली इस फिंगर से शुरू करें, जिसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। इसके बाद मिडिल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, सबसे छोटी उंगली का नाखून काटना है। सीधे हाथ का जो थंब है इसका नाखून अभी नहीं काटना, उसको छोड़ देना है। फिर लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से नाखून काटना शुरू करें। इसके बाद रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर और इसके बाद इंडेक्स फिंगर और इसके बाद लेफ्ट हैंड के थंब का नेल भी काट लें और इसके बाद राइट हैंड के थंब का नाखून जो हमने छोड़ा था वो भी काट लें। अच्छा, अब ये तो हुआ हाथ के नाखून काटने का सुन्नत तरीका। और पाँव के नाखून काटने हो तो उसकी सीक्वेंस यूं होगी। राइट फुट की छोटी उंगली, जिसे इंग्लिश में लिटिल टो कहते हैं, इससे काटना शुरू करें। सीक्वेंस वाइज थंब के नाखून भी काट लें और इसके बाद लेफ्ट फुट के थंब से शुरू करें और छोटी उंगली का भी नाखून काट लें। आप अगर बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़हन में भी बैठ जाएगा और ये भी बैठ जाएगा कि आप नाखून नहीं खाएंगे, सिर्फ खाना खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। तो देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। अच्छा, आप ये बताइए कि हमें गुस्सा जो है वो क्यों आता है? गलत बात पे गुस्सा आता है, गलत काम पे गुस्सा आता है। जो भी गलत काम हो, गलत बात हो, उस पर गुस्सा आता है बंदे को। गुस्सा इसलिए आता है कि इंसान की बात पे कोई दूसरा बंदा अमल ना कर रहा हो, उसकी वजह से गुस्सा आता है। बच्चे बातों पे अमल ना करें, घर वाले ना करें, मुलाजमीन अमल ना करें तो गुस्सा बंदे को आता है। हमारे मर्जी के मुताबिक काम ना हो तो इसलिए हमें गुस्सा आता है। शैतान बहकाता है तो गुस्सा करते हैं। जब कोई काम मर्जी के मुताबिक ना हो तो गुस्सा आ जाता है। बच्चे बहुत तंग करते हैं तो उस पर भी गुस्सा किया जाता है। गुस्सा करने वाला दूसरे की बात भी ठीक से नहीं सुनता, इसमें किसी को जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं बोलता हूँ ना बड़ों को गुस्सा करना चाहिए ना छोटों को गुस्सा करना चाहिए। बिल्कुल, ना बड़ों को गुस्सा करना चाहिए और ना ही छोटों को गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा गलत बातों पे आता है और गलत चीज़ों पे आ जाता है। जैसे कि आपके दोस्त आपसे गलत बात कर लें, मिसाल के तौर पे वो आपसे बाइक मांग लें, आप बाइक ना दें तो उस पर भी गुस्सा आ सकता है। और बहुत सारे आजकल के माशरे में चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें आप बहुत चीज़ों से आपको गुस्सा आ रहा होता है। ट्रैफिक पे गुस्सा आपका, गुस्से में बहुत कुछ हो सकता है, जैसे घर में कोई चीज़ तोड़ दी, किसी को मार दिया या क्या, ऐसे बड़े नुकसान आते हैं। इसमें तो बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन गुस्सा आदमी को नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त कर ले वो तो अच्छी बात है। गुस्से से ये आदमी बहुत से मामलात ख़राब हो जाते हैं। गुस्से में थोड़ी देर का गुस्सा होता है, लेकिन एक सेकंड के लिए आदमी क्या से क्या कर देता है, उससे बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं। चले, ये तो हो गई राय आप लोगों की गुस्सा करने के बारे में। अब कुछ उसके नुकसानात पे भी बात कर लेते हैं। नुकसानात जान भी जा सकती है गुस्से में। जब गाली गलौज और बदतमीजी होती है तो अल्लाह ताला उसको ना पसंद करता है। गुस्से के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है, दिमाग की रग फट सकती है और सब मसले मसाइल हैं। गुस्से के अंदर सारे मामलात बिगड़ते हैं। गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। गालम गलोच पे भी उतर आता है और बड़े नुकसानात होते हैं। मियाँ बीवी दूर हो सकते हैं और सौ मसले मसाइल हैं। बच्चे बड़ों से दूर हो सकते हैं। गुस्से के नुकसानात ये हैं कि उस वक्त जज्बात में बंदा बहुत कुछ कर लेता है, बाद में पछतावा रह जाता है। गुस्से के नुकसानात तो जैसे मुझे लगता है कि इंसान अपने आप से गुस्सा करके गलत करता है, अपना जैसे मूड होता है वो ख़राब करता है और आसपास की उसकी सारी चीज़ें, मतलब वो एक, अगर आप सुबह का आगाज़ ही गुस्से से करो तो एक सब पूरा दिन गुस्से में रह के सब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने आप पे काबू रखना चाहिए और मतलब मोहब्बतें बांटनी चाहिए। गुस्से से हम अपने उस पर नफ्स पे कंट्रोल करें तो बच सकते हैं। तौबा करें, नमाज पढ़ें, जिक्र करें। गुस्से से हम इस्तगफार पढ़ के बच सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये वाला भी सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात। चलते चलते नेकी की बात। दोस्तों, गुस्सा आना एक नेचुरल थिंग है जो इंसान को आ ही जाता है, लेकिन अगर इसको पी लिया जाए
صبر کیا جائے تو اسی میں کامیابی ہے. جیسے کسی نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کو غصہ آ گیا, اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں بھی اسے کچھ برا بھلا بول دوں, لیکن آپ صبر کر لیتے ہیں تو غصہ تو آپ کو بھی آیا, لیکن یہ غصہ آنا ایک نیچرل بات ہے. لیکن غصہ آنا تو ایک نیچرل تھنگ ہے اور آپ نے اس پر صبر کیا, اگر اچھی نیت ہوئی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. چلے آئے میں آپ کو غصہ پینے کا ثواب بتاتا ہوں. جنت کی بشارت. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے کوئی ایک ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تغضب ولک الجنت, یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے گا, اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک دے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے غصے کا بلا وجہ اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے سنا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوا ختم. اب ملاقات ہوگی کچھ نئی معلومات کے ساتھ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو پیارے بچوں اور کرشمتی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم, کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم. چلتے چلتے نیکی کی بات, بچوں کا مدنی چینل آ گیا.